Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. Hello guys, my name is Jayant Nahata and I'm very delighted to share that I have secured All India rank 56 in this year's UPSC Civil Service exam. And so my background is that I'm a Delhiite. I was born in Kolkata and I was raised in Delhi, and I did my schooling from Delhi and did my graduation from IIT Delhi. It was a BTech and MTech in Biochemical Engineering and Biotechnology. And I passed from IIT in 2018, and 2018 was also my first attempt, and 2019 I cleared the exam with a rank of 298, and this time it is 56. So in this part I will like to discuss my interview strategy. Incidentally and fortunately I secured 198 marks in my last interview, which was my first interview in UPSC, and my board was PK Joshi sir, who has now been made the honorable chairman of UPSC. So based on that, I feel that my interview strategy, my interview framework or anything can work for you. So interview, my broad perspective and philosophy for interview was that don't rely just on your personality. Even though maybe you have some good educational qualifications or you have some awards or you can talk in English well, just don't rely on that. Work extensively on that, and seniors such as Abhishek Saraf sir, who has got All India rank in top 10 last year, they were the ones that guided me and those that inspired me that to work really hard for interview stage as well, and not to just give up on your hard work after the main stage, which is a very demanding stage, definitely, but still work on the last lap equally if not more. So I worked on that a lot, and I would say that I was fortunate also कि last year it was an extension of my UPSC schedule because of the unfortunate first wave, and मेरे को जो 3-4 महीने extra मिले rather than crib about it, थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर entertainment किया, but I used that as an opportunity to further bolster my interview का preparation. So that really worked, and finally 198, I think that hard work, my preparation worked. So in preparation, the most important part is DAF, and based on DAF, your self-made questions and answers you prepare for it, concise answers that you prepare for it. This is absolutely the most important part, how you write all the different things and different aspects, different pointers from your interview, how you can extract them out, and finally आप उसको Evernote पे या कहीं भी offline, मेरा Evernote source था, मैं उस पे जाके अलग अलग pointers, IIT Delhi हो गया, Old Rajendra Nagar was one of my places that I stayed, या कोलकाता हो गया, Delhi हो गया, whatever, biotechnology, your hobbies, everything you just write it down separately. And initially जब आपका interview call आता है या जब भी आपने preparation start करनी interview की, you just brainstorm any and every type of question that a layman normally has, can ask you and has curiosity for it. कि suppose biotechnology, a layman can ask you biotechnology क्या है, what is biotechnology, explain me in simple terms. और आपका कोर्स बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है, तो व्हाट इज़, क्या डिफरेंस है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में, डिफरेंस क्या है इन दोनों में. तो विच इज़ नॉट यूजुअली जो आप इतना प्रेपरेशन में आसपास फ्रेंड्स आपको बोलेंगे या कुछ आपको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, सबको फॉर ग्रांटेड लगेगा, बट यही क्वेश्चंस हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी को डिपिक्ट करते हैं यूपीएससी में, इफ़ एंड व्हेन दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड. एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट. लेमैन टाइप का आप क्वेश्चंस बिल्ड करना शुरू करो और उसमें आप क्वेश्चन ऐड करते रहो जो आपको मॉक्स के थ्रू, इंटरव्यू के मॉक्स में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं या जो भी आपके दिमाग में भी आ रहा है वो भी लिखो, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, सो दैट आपके एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए आपके डैफ के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, एक्सपीरियंसेस के ऊपर. दिस हेल्प मी फाइनली लास्ट ईयर PK Joshi सर's बोर्ड में. The first 2-3 questions were all about this
that differentiate what is biochemical engineering and biotechnology. So I had written good answers for it, and I didn't have to think much. I was talking on the feet and very spontaneously. So I think that worked on a number of questions. मेरे last year काफ़ी questions I had prepared and I was able to answer them very beautifully, I think, and very confidently. तो आप क्वेश्चन्स बनाओ और उसके आंसर्स बनाओ, फिर आंसर्स पे आइट्रेशन करो, क्वेश्चंस भी ऐड करो, उस पर भी आइट्रेशन करो. तो जैसे आपने आंसर बनाया एनीथिंग बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, मैंने पहले एक बड़ा सा आंसर बना लिया था क्योंकि मुझे लगा एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 लाइन में उसको, 2 लाइन में उसको. बट अब 6-7 लाइन्स वहाँ पे नहीं बोलने का टाइम होता है. इफ़ समबडी इज आस्किंग यू योर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आप 5-6 लाइन नहीं बोल सकते. तो आप उसको कंसाइज करने की सेकंड आइट्रेशन में जब आप रिवाइज करो अपने नोट्स इंटरव्यू के, इसको कंसाइज करो, कुछ आप यूनिक पॉइंट डालो, इसमें कोई एग्जाम्पल डाल दो. ऑल ऑफ दिस हेल्प मी. अलग अलग इंटरव्यू में बहुत बिट्स होते थे जहाँ पे ये सब हेल्प करता था. सपोज मेरे से कोई विपासना पे पूछा, इस बार माई बोर्ड वॉज मिस सत्यवती मैम्स बोर्ड, एंड वन ऑफ द मेम्बर्स आस्क्ड मी, डोंट यू थिंक विपासना मेडिटेशन इज एस्केपिज्म? यूजली पीपल यही सोचते हैं कि इतनी बिजी लाइफ है, विपासना क्यों जा रहे हो, 10 दिन एस्केप कर रहे हो तुम अपनी प्रॉब्लम से, लाइफ से. तो एक लेमैन भी यही सोचेगा, भाई यू आर एस्केपिंग लाइफ. तो इट वॉज अ वेरी जेन्युइन एंड गुड क्वेश्चन कि isn't Vipassana escapism? I had thought about it already what to answer, and I just didn't think or didn't take time. I just said, sir, quite on the contrary, Vipassana is about facing your reality. It's the reality of impermanence and so on and so forth. So you have good spontaneous quirky answers and good answers and unconventional answers for few of the questions, and your interview day is made. They know that you have thought about your hobbies, your experiences in a very डिटेल्ड सा मैनर, एंड थोड़ा अच्छे डीपली आपने इन सब चीज़ों के ऊपर सोचा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें बहुत जगह वर्क करी, मल्टीपल लेवल्स पे. ये विपासना का एग्जांपल दिया. हॉबीज़ पे लास्ट टाइम भी, इस टाइम भी मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन कि आपने बुक्स पढ़ी हैं, जो मैंने लिखा था वहाँ पे कि मैंने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है. सो दे आस्क्ड मी, इस बुक का नाम इस ऑथर है, क्या बुक है, उस पर क्या सजेशंस है, बताओ. आई हैड ऑलरेडी रेड दैट बुक 2-3 times बिफोर माई इंटरव्यू, so that I could answer that question. I preempted that question. Similarly, इधर भी I mentioned some book on habit building and how to break bad habits, how to build good habits. तो उसके ऊपर भी मुझसे क्वेश्चन पूछा कि how do I leave a bad habit. Hello friends, UPSC मेंस में हाई स्कोर करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. तो जैसे लास्ट ईयर भी एक पर्सनल एग्जांपल के थ्रू मेरा एक हाई नोट पे इंटरव्यू एंड हुआ था, विच आई थिंक मेड अ गुड इंप्रेशन ऑन द फीमेल मेंबर दैट आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन, मेंबर 4. एंड उस पे उन्होंने पूछा था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे चीज़ें चल रही थी, बिकॉज आई हैड मैंशनड अ प्रोजेक्ट दैट आई वर्क सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर. मेरा एक प्रोजेक्ट था वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विच सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन. हमने स्मोकलेस स्टोव के ऊपर बताया था. सो वन मेंबर आस्क्ड मी ये स्मोकलेस स्टोव क्या है. उसी के ऊपर ये वुमेन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो उठ गए थे, वुमेन की स्कीम्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ गए. तो आई वाज एबल टू आंसर वुमेन की स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं. तो दैट मेंबर जस्ट सेड टू लुक टू एवरीबडी एंड सेड, यू नो एवरीथिंग अबाउट वुमेन स्कीम्स, चलो आगे कुछ पूछती हूँ. एंड शी सेड कि स्कीम्स तो आ रही हैं, गैस जो उज्ज्वला योजना है, यू आर गिविंग गैस, बट कैन वुमेन रिफ्यूज़ टू कुक. पेट्रियार्की उन्होंने एक वो टॉपिक उठा लिया. तो उस पर मैंने उनको एक रियलिस्टिक आंसर दिया कि इट इज़ चेंजिंग, दीज आर लॉन्ग हेल्ड सोशल ट्रेडिशंस, दीज आर चेंजिंग. अर्बन एरियाज़ में, पेरी अर्बन एरियाज़ में चेंजेस हैं. रूरल एरियाज़ में भी विद फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चीज़ें चेंज होंगी एंड हो रही हैं. और फिर इधर मैंने अपना एक पर्सनल एग्जांपल, जो भी मेरा प्रोजेक्ट आंच मेरा मेंशन था, वो मैंने उनको बताया कि कैसे जब हमारी एंटरप्रेन्योर्स गई बाहर तो मेल मेंबर्स ने उनका कुकिंग और जो भी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ है वो ले ली, बिकॉज शी वॉज फाइनेंशियली एम्पावर्ड एंड शी वॉज अ लिटिल ऑटोनॉमस. वो बाहर गई, उदयपुर गई, तो मेल मेंबर ने संभाल लिया. सो आई एंडेड इट ऑन अ वेरी रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड पर्सनल टच देके, एंड काफ़ी रियल बेस पे ख़त्म किया. एंड ऑल ऑफ दिस यू कैन नॉट पुल दिस ऑफ लास्ट मिनट पे
उधर ऑन द टॉप ऑफ योर हेड तुम सोच के कुछ बोल दो, वो एक बार ही बोल सकते हो, बट मल्टीपल टाइम्स विपासना इधर उधर तुम अच्छे बोल रहे हो, बिकॉज यू हैव थॉट थ्रू, यू हैव रिटन इट डाउन समवेयर, योर थॉट्स यू हैव क्रिस्टलाइज्ड इट एंड यू हैव मेड इट concise so that they are able to also judge you on a wide front rather than एक बहुत deeply आप ही बोले जा रहे हो 3-4 मिनट तक, तो आप concisely बोलना आपको सीखना पड़ेगा। बाकी I had also read a book last time 2019, मेरा first attempt मतलब first interview था, I had read a book How to Get Hired in 60 Seconds। उस book का मतलब as such उस book से मैंने बस ये निकाला कि 60 seconds 30 seconds should be your maximum time limit for speaking, and by the end of your interview कुछ 4 या 5 मेन क्वालिटीज़ आप अक्रॉस योर आंसर्स, डजेंट मैटर वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं, विपासना पूछ रहे हैं या वुमेन के ऊपर, अक्रॉस आंसर्स कुछ 5 या 4 ट्रेट्स उनको अगर आप में इंटेग्रिटी होती है ना, जो कि ये 3-4 ट्रेट्स होते हैं कि वो ट्रेट्स कंसिस्टेंट है आपके सारे आंसर्स में, विच शोज़ दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, सिर्फ आप बना नहीं रहे हो, सारे आंसर्स अच्छे अच्छे बना के नहीं आए हो, प्रिपेयर करके नहीं आए। तो मैं चाहता था वो 4-5 ट्रेट्स मैंने सोच लिया था कि ये ट्रेड्स दिखाऊंगा मैं, विच आई पोजेस, वो मैं ट्राई करूंगा अपने आंसर्स में डालना, और फिर मैंने ऐसे ही आंसर्स फिर थोड़े रखे कि मैं अपना क्यूरोसिटी दिखा पाऊँ, मैं उनको अपना वाइड एक्सपीरियंस दिखा पाऊँ, वुमेन से लेकर मैंने मेरी वाइड हॉबीज़ रखी, जानबूझ के मैंने डैफ को थोड़ा जानबूझ के इन द सेंस आई हैड अ नंबर ऑफ हॉबीज़, आई डिड नॉट पुट हॉबीज़ दैट आर रिडंडेंट सो दैट मेरा वाइड रहे डैफ। सो आई कुड हैव पुट हॉबीज़ जो मेरी दूसरी हॉबीज़ हैं, बट उससे थोड़ा रिडंडेंट हो जाता है, तो यू कैन डू दैट, डैफ में अपना थोड़ा वही हॉबीज़ डालो जिस पे आपको क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप अच्छे से आंसर कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों साल स्पोर्ट्स का सेक्शन एम्प्टी रख दिया था, ऑल्दो आई प्लेड स्पोर्ट्स, बट टेबल टेनिस खेला था मैंने, बट टेबल टेनिस पे आई डिड नॉट फील लाइक आंसरिंग क्वेश्चंस, आई डिड नॉट हैव समथिंग यूनिक टू टेल अबाउट, आई डिड नॉट हैव अ स्टोरी टू टेल अबाउट कि टेबल टेनिस में मैंने क्या किया, एंड उसके बेसिस पे वो जज करें कि मैं सूटेबल हूँ IAS IPS के लिए, तो आई डिड नॉट इवन मेंशन इट स्पोर्ट्स में, तो आई डिड नॉट गेट क्वेश्चन ऑन स्पोर्ट्स, आई वाज सेव दैट 5-7 क्रूशल मिनट्स जो स्पोर्ट्स पे चले जाते हैं लोगों के, अगर अच्छे से आंसर करो तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो फिर वो एक टाइम वेस्ट हो जाता है, वो एक गैप बन जाता है। बाकी इंटरव्यू में आप डाफ अच्छे से भरो, जैसे स्पोर्ट्स मैंने एलिमिनेट कर दिया, या नॉन रिडंडेंट या अट्रैक्टिव चीज़ें आप डालो जो जिस पे क्वेश्चंस आए, तो आप बहुत पैशनेटली आप आंसर कर पाओ। सिर्फ पैशनेटली, मैं पैशन पे बहुत फोकस किया कि इंटरव्यू में पैशनेटली आई विल आंसर क्वेश्चंस, एंड मेरा मोस्टली मैं ट्राई करता था कि 60% 50% इंटरव्यू में अगर मेरा कुछ दे सी सम स्पार्क एंड दे सी दैट आई एम जेन्युइन एंड दे सी दैट आई हैव वाइड वैरायटी ऑफ हॉबीज़ एंड पर्सनैलिटी, मेरा अचीवमेंट सब देख के वो उनको एक फील गुड फैक्टर बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू उनको लगना चाहिए ये 3-4 क्वालिटीज़ हैं इसमें, एंड पर्सनैलिटी इज़ गुड। तो वो उस सेंस में आप रिवर्सली प्रिपेयर करो मॉक्स, तो वैसे ही आंसर्स अपने कंसाइज बनाओ, रिवाइज करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम दैट नोशन कि फाइनली ये होना चाहिए आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ योर इंटरेक्शन विद द बोर्ड। तो फाइनली मैंने यही सब किया और मॉक्स बहुत सारे दिए, जिससे लास्ट टाइम भी इंटरव्यू एक्सटेंड हो गया था, तो मैंने बहुत सारे मॉक्स दे दिए थे एंड मैं इम्प्रूव कर रहा था। एंड डोंट गेट बॉक डाउन बाय मॉक्स। बहुत सारे मॉक्स मुझे इस बार बोल रहे थे कि आपके 198 आ गए हैं, तो यू लुक मोर रिलैक्स दिस टाइम। वो सारे कमेंट्स आपको नहीं लेने हैं, आपको वो कमेंट लेना है जो जेन्युइन आपको लग रहा है कमेंट कि हाँ ये कंटेंट पे मैंने वर्क नहीं किया या करंट पे थोड़ा मेरा ग्रास्प छूट गया, वो सारे कंटेंट करो। इंटरव्यू में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाती है मेन से, कि आप न्यूज़पेपर का फोकस चेंज हो जाता है आपका। आप थोड़ी ज़्यादा जो शॉर्ट मेमोरी स्पैन की न्यूज़ होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं मेंस में, हम थीम पे पढ़ते हैं मेंस, यहाँ पे आप वो भी पढ़ोगे और वो भी आप यूज़ करोगे कहीं ना कहीं आंसर में, तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आप छोटी छोटी न्यूज़ पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं लोग वहाँ पे मेंबर्स, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो और मल्टीपल न्यूज़पेपर पढ़ो। मैंने जैसे इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा और हिंदू कई बार पढ़ लेता था मैं बीच बीच में जब टाइम होता था, तो थोड़ा वाइड कवरेज रखा और टाइम्स ऑफ इंडिया पे फोकस किया, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया पिक्स अप छोटी छोटी न्यूज़ भी एंड इट कवर्स इट वेल, विच अदर न्यूज़पेपर्स माइट नॉट डू। तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। एंड इंटरव्यू के ऊपर आई डोंट थिंक इसके बियॉन्ड कुछ है। बाकी आई थिंक कि डी डे पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रूटीन कुछ एकदम चेंज मत करना ड्रास्टिकली। आप लास्ट के 5-6 दिन थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, बट एकदम ड्रास्टिकली कुछ चेंज मत करो। जैसा आपने
मेंटेन कर रहे हो, काम कंपोजर वही मेंटेन करो, वही रूटीन, सोने उठने का वो मेंटेन करो। फाइनली एग्ज़ाम के दिन एक स्लीप आपका अच्छा 8-9 आवर्स का स्लीप अगर आपका हो, एंड क्लोथ्स वगैरह आप देख लो जैसा भी रहता है कैंडिडेट्स के फ़ोटो देख के कि नॉर्मल सूट्स एंड ऑल, नथिंग फैंसी। तो आप वो सब करके जाओगे एंड फाइनली आप बी कॉन्फिडेंट एंड नथिंग इज़ मतलब रिटन। कि जैसे मुझे मॉक्स में कोई बोलता था कि आप थोड़ा तेज़ बोल रहे हो, थोड़ा स्पीड कम कर दो, यू कैन नॉट चेंज इट। मतलब मैं अभी भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा नॉर्मल स्पीड ही आएगा जो है। तो आप जितना भी मॉक्स में चेंज करने की कोशिश करो, फाइनली स्पीड नहीं चेंज कर सकते हो, या फाइनली आप कुछ जो चीज़ होती है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हैंड मूवमेंट्स हाँ कंट्रोल कर सकते हो, वो करना भी चाहिए। बाकी एक और सजेशन मिलता था मुझे कि 2-3 सेकंड का पॉज लेके आप बोला करो, नहीं तो ऐसा लगता है कि आप बस आंसर किए जा रहे हो रैपिड फायर में। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जब 2 सेकंड का पॉज लेके बोल रहा था तो आई काइंड ऑफ फेल्ट वेरी डम सा। मतलब जब मैं अपनी वीडियोज़ वापस देखता था मुझे लगता था कि एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है, मैं 2 सेकंड कहीं देख रहा हूँ और आंसर कर रहा हूँ। सो यू कैन टेक योर टाइम, आधा सेकंड या उनसे मांग के और भी ज़्यादा, बट आर्टिफिशियल कुछ भी मत करो। आर्टिफिशियल अपनी स्पीड कम करना, आर्टिफिशियल 2-3 सेकंड का पॉज लेना, इट्स नेवर गुड। तो कोई भी एक आपको सजेशन मिल रहा है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यूज़ योर ओन, अपना दिमाग यूज़ करके, अपना जो स्मार्टनेस है वो यूज़ करके उन स्ट्रैटेजी को और सजेशन को लो और इम्प्लीमेंट करो। एंड आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू विल डू गुड। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, and I hope you also taste success really soon. Thank you.